اسلامک شورٹ اسٹیٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے گرد جمع ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے تم خود نہیں جانتے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے، کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر کا گوشت کھایا جا چکا ہے، ان کے اندر مغز موجود ہیں، مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے، ان میں کیڑے پڑ چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی، سپاہی ناچ رہے تھے، اس کے سالار اور سردار خیموں میں شراب پی رہے تھے، مسلمانوں کا شبخون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ سالار قعقاع بن عمر نے اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہا، اور اب دیکھو یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا، انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے، فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا، تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے اور روح کو ایمان تقویت دیتا ہے۔ سالار زبرقان اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہہ رہے تھے، سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمر بھی جو سالار قعقاع بن عمر کے بڑے بھائی تھے اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا تھا، دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور میرے دوستو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پر فتح عطا کرتا چلا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا یہ لشکر کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے، اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں۔ مدینہ کے مجاہدین کا حوصلہ تو بھاگتے دشمن کو میدان جنگ میں اس کے زخمیوں کو تڑپتا اور لاشوں کو سرد ہوتا دیکھ کر تر و تازہ ہو جاتا تھا، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر غرور اور تکبر سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے، انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے اسے نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد رضی اللہ عنہ کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یک کے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ وقت دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد رضی اللہ عنہ مزیح میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی تھی، یہ تھا شبخون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر 2 مقامات پر جمع تھا، ایک زمیل تھا اور دوسرا سنا۔ انہی 2 مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہیں جا پہنچا تھا اور مزیح سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی 2 مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنا اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی، وہاں سردار اور سالار بھی تھے، انہیں بہت مشکل پیش آئی، جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا، سنا میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے تانے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان 2 مقامات پر جنگ کی تیاریوں کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔
सवार और प्यादे तेगजनी की मशक सुबह से शाम तक करने लगे। सवार दस्तों को हमला करने और हमला रोकने की मशकें करवाई जाने लगी। उस वक्त तक किसरा के सालार और उनके इत्तेहादी ईसाइयों के सरदार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जंगी चालें समझ चुके थे। ईसाइयों के एक कबीले का सरदार रबिया बिन बुजैर कह रहा था, लेकिन चालें समझने से क्या होता है, दिल को जरा मजबूत रखें तो इन थोड़े से मुसलमानों को कुचलना कोई मुश्किल नहीं। उसके पास ईसाइयों के बड़े सरदार अका बिन अबी अका का बेटा बिलाल बिन अका बैठा हुआ था। अका बिन अबी अका सरदारों में सरकर्दा सरदार था। उसने ललकार कर कहा था कि वो खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काट कर लाएगा, मगर ऐनुल तिमर के मार्के में वो पकड़ा गया। इससे पहले खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कसम खाई थी कि वो अका को जिंदा पकड़ेंगे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की कसम पूरी हो गई। उन्होंने अका का सर अपनी तलवार से काटा था। बिलाल अका का जवान बेटा था जो अपने बाप के खून का बदला लेने आया था। उसने अपने सरदार रबिया की बात सुनकर कहा, इब्ने बुजैर, मैं अपने बाप के सर के बदले खालिद का सर लेने आया हूँ। रबिया बिन बुजैर ने कहा, एक नहीं हम पर हजारों सरों का कर्ज चढ़ गया है। वो कुछ देर बातें करते रहे, फिर बिलाल बिन अका चला गया। रात का वक्त था, रात सर्द और तारीख थी। महीना नवंबर का था और उसी शाम रमजान का चांद नजर आया। बिलाल बाहर जाकर रुक गया। वो अपने लश्कर के खैमों से कुछ दूर था। उसे एक तरफ से अपनी तरफ कोई आता दिखाई दिया। नया चांद कभी का डूब चुका था। तारीख रात में चलते फिरते इंसान मुतहर्रिक साए लगते थे। साया जो बिलाल की तरफ आ रहा था करीब आया तो बिलाल ने देखा कि वो कोई आदमी नहीं औरत है। औरत ने कहा, इब्ने अका, मैं साबिहा हूँ, साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर, जरा रुक सकते हो मेरी खातिर। बिलाल बिन अका ने मसरूर लहजे में कहा, ओ रबिया बिन बुजैर की बेटी, क्या मैं अभी अभी तेरे घर से उठकर नहीं आया? साबिहा ने कहा, लेकिन जो बात कहनी है वो मैं बाप के सामने नहीं कह सकती। बिलाल ने कहा, क्या तूने मुझे अपने काबिल समझा है? बात जो तू कहना चाहती है वो पहले ही मेरे दिल में है। साबिहा ने कहा, गलत न समझ इब्ने अका, पहले मेरी बात सुन ले। मुझे बता कि मुझसे ज्यादा खूबसूरत लड़की तूने कभी देखी है? बिलाल ने कहा, नहीं बिनते रबिया। साबिहा ने कहा, कभी मदाइन गया है तू? वो बोला, गया हूँ। साबिहा ने कहा, सुना है फारिस की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत हैं? बिलाल ने कहा, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तू वो बात कह दे जो तेरे दिल में है? फिर बोला, मैंने तुझसे ज्यादा किसी लड़की को कभी हसीन नहीं समझा। मैं तुझे तेरे बाप से मांगना चाहता था। मैं नहीं जानता था कि तेरे दिल में पहले ही मेरी मोहब्बत पैदा हो चुकी है। साबिहा ने कहा, मोहब्बत तो अब भी पैदा नहीं हुई। मैं किसी और को चाहती हूँ, आज से नहीं, उस दिन से चाहती हूँ जिस दिन मैंने महसूस किया था कि मैं जवान होने लगी हूँ, और जवानी एक साथी का मुतालबा करती है। बिलाल ने कहा, फिर तू मुझे क्या कहने आई है? साबिहा ने कहा, ये कि मैंने उसे अपने काबिल समझना छोड़ दिया है। मर्द की ताकत औरत के जिस्म के लिए ही तो नहीं होती। वो ताकतवर और खूबसूरत आदमी है। वो जब घोड़े पर बैठता है तो मुझे और ज्यादा खूबसूरत लगता है। बिलाल ने कहा, फिर क्या हुआ उसे? साबिहा ने कहा, वो बुज़दिल निकला। वो लड़ाइयों में से भाग कर आया है। दोनों बार उसे खराश तक नहीं आई। मुझे शक है कि वो लड़े बगैर भाग आता है। वो मेरे पास आया था, मैंने उसे कह दिया कि मुझे भूल जाओ, मैं किसी बुज़दिल की बीवी नहीं बन सकती। उसने मेरे बाप को बताया तो बाप ने मुझे कहा कि मैं तो उसकी बीवी बनने वाली हूँ। मैंने बाप से भी कह दिया कि मैं मैदान से भागे हुए किसी आदमी की बीवी नहीं बनूंगी। बिलाल ने पूछा, क्या अब तू मेरी बहादुरी आजमाना चाहती है? साबिहा ने कहा, हाँ, और उसका इनाम देख, इतना हसीन जिस्म तुझे कहाँ मिलेगा? बिलाल ने कहा, कहीं नहीं, लेकिन मैं एक काम का वादा नहीं करूंगा। हमारे सरदार और हमारे कबीलों के जोशीले जवान ये ऐलान करके मुसलमानों के खिलाफ लड़ने जाते हैं कि मुसलमानों के सालार खालिद बिन वलीद का सर काट कर लाएंगे, मगर वो खुद कट जाते हैं या भाग आते हैं। मैं ऐसा वादा नहीं करूंगा। खालिद का सर कौन काटेगा उस तक कोई पहुंच ही नहीं सकता। साबिहा ने कहा, मैं ऐसा वादा नहीं लूंगी। मैं तेरे मुंह से नहीं, दूसरों से सुनना चाहती हूँ कि तूने सबसे ज्यादा मुसलमानों को कत्ल किया है और मुसलमानों को शिकस्त देने में तेरा हाथ सबसे ज्यादा है। मैं ये भी वादा करती हूँ कि तू मारा गया तो मैं किसी और की बीवी नहीं बनूंगी, अपने आप को खत्म कर दूंगी। बिलाल ने कहा, मैं तुझे एक बात बता देता हूँ साबिहा, मैं तेरी खातिर मैदान में नहीं उतर रहा। मेरे ऊपर अपने बाप के खून का कर्ज है, मैंने ये कर्ज चुकाना है। मेरी रूह को तस्कीन तभी होगी कि मैं इब्ने वलीद का सर अपनी बर्छी पर लाऊं और बनी तगलब के बच्चे बच्चे को दिखाऊं, लेकिन वो बात क्यों जबान पर लाऊं जो हाथ से न कर सकूं। उस तक पहुंचूंगा जरूर, रास्ते में जो आएगा उसे काटता जाऊंगा। मैंने अपना घोड़ा तब्दील कर लिया है, हवा से तेज है और बड़ा ही ताकतवर। साबिहा ने कहा, मैं तेरी ताकत और तेजी और फुर्ती देखना चाहती हूँ।
अगर ऐसा हो तो मुझे साथ ले चल, मर्दों की तरह लड़ूंगी, लेकिन अगर तूने पीठ दिखाई तो मेरी तलवार तेरी पीठ में उतर जाएगी। बिलाल ने कहा, मैं तुझे माल गनीमत में मुसलमानों के हवाले नहीं करना चाहता, और ये भी सुन ले साबिहा, मेरा बाप अका बिन अबी अका यही अहद लेकर गया था कि वो खालिद बिन वलीद को खून में नहला कराएगा, मगर उसने हथियार डालकर अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दिया। मालूम नहीं मुसलमानों को किसने बता दिया ये शख्स इब्ने वलीद का खून बहाने का अहद करके आया था। इब्ने वलीद ने मेरे बाप को कैदियों से अलग किया और सबके सामने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। मैं तुझे भी यही कहता हूँ कि वो बात न कह जो तू नहीं कर सकती। साबिहा ने कहा, और मैं तुझे एक बात कहना चाहती हूँ जो तुझे अच्छी नहीं लगेगी। अगर अब मेरे कबीले ने मैदान हार दिया तो मैं अपने आप को मुसलमानों के हवाले कर दूंगी और उनसे कहूंगी कि मैं उस आदमी की बीवी बनना चाहती हूँ जो सबसे ज्यादा बहादुर है। बिलाल बिन अक्का ने कहा, हम इस कोशिश में अपनी जानें लड़ा देंगे कि मुसलमान हमारी औरतों तक न पहुंच सकें, लेकिन कोई नहीं बता सकता क्या होगा। एक तरफ तेरे दिल में मुसलमानों की दुश्मनी है और दूसरी तरफ तुम अपने आप को मुसलमानों के हवाले करने की बातें करती हो। साबिहा ने कहा, मैं ये बातें इसलिए करती हूँ कि मेरे दिल में कुछ शक और कुछ शुबहे पैदा होते जा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे मजहब मुसलमानों का ही सच्चा है। इतनी थोड़ी तादाद में वो फारिस के और हमारे तमाम कबीलों के लश्करों को हर मैदान में शिकस्त देते चले आ रहे हैं, तो इसकी वजह इसके सिवा और क्या हो सकती है कि उन्हें किसी गैबी ताकत की मदद हासिल है। अगर यसु मसीह खुदा के बेटे होते तो क्या खुदा अपने बेटे की उम्मत को इस तरह जलील ख्वार करता? मुझे बताने वाला कोई नहीं कि मुसलमान उसी खुदा को अल्लाह कहते हैं या अल्लाह कोई और है। बिलाल ने झुंझुला कर कहा, ऐसी बातें मुंह से न निकालो साबिहा, तुम बहुत बड़े सरदार की बेटी हो, अपने मजहब पर ऐसा शक न करो कि उसकी सजा हम सबको मिले। साबिहा ने कहा, मैं मजबूर हूँ इब्ने अका, मेरी जात से कुछ आवाजें सी उठती हैं। कभी ख्याल आता है जैसे मैं अपने कबीले में और अपने घर में अजनबी हूँ, ऐसा लगता है मैं कहीं और की रहने वाली हूँ। मैं कुछ नहीं समझती बिलाल, मैं जो कहती हूँ वो करो, फिर मैं तुम्हारी हूँ। बिलाल ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, ऐसा ही होगा साबिहा, मैं अगर जिंदा वापस आया तो फातेह होकर आऊंगा, अगर मारा गया तो वापस आने वालों से पूछ लेना कि मैंने मरने से पहले कितने मुसलमानों को कत्ल किया। बिलाल रात की तारीकी में गायब हो गया। साबिहा बिनते रबिया बिन बुजैर वहीं खड़ी बिलाल को साए की तरह रात की तारीकी में तहलील होता देखती रही। 3 या 4 रातें ही गुजरी थी। सन्ना की खैमगाह और ईसाइयों की बस्तियां तारीकी में डूबी हुई थी। रमजान 12 हिजरी का 3रा या 4था चांद कभी का उफक में उतर चुका था। इंसानों का एक सैलाब सन्ना की तरफ बढ़ा रहा था। ये मदीना के मुजाहिदीन की फौज थी जो सैलाब कहलाने के काबिल नहीं थी, क्योंकि उनकी तादाद 15 या 16 हजार के दरमियान थी और दुश्मन की नफरी 3-4 गुना थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सन्ना पर भी मुजी वाला दाव आजमाने का फैसला किया था। उन्होंने अपने मुजाहिदीन से कहा था कि दुश्मन को और अपने आप को भी मोहलत देना खतरनाक होगा। अल्लाह हमारे साथ है, फतह और शिकस्त उसी के हाथ में है। हम उसी की जाते बारी के नाम पर कुफ्र की आग में कूदे हैं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने और भी बहुत कुछ कहा था। मुजाहिदीन के अंदाज में जोश खरोश पहले वाला ही था। जिस्मों में अलबत्ता वो दमखम नहीं रहा था, लेकिन अज़्म रोज़े अव्वल की तरह जिंदा व पाइंदा था। जैसा कि पहले बताया गया कि 15-16 हजार के लश्कर से दुश्मन पर शबखून मारना इसलिए खतरनाक होता है कि खामोशी बरकरार नहीं रखी जा सकती और दुश्मन कबल अज़ वक्त बेदार हो जाता है। इसमें दुश्मन की घात का खतरा भी होता है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इन खतरों से निपटने का ये एहतमाम कर रखा था कि पहले शबखून की तरह अब के भी उन्होंने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। सलार भी वही थे जिन्हें पहले शबखून का तजुर्बा हासिल हो चुका था। अब जासूसों ने उन्हें दुश्मन के क़याम की जो इत्तलाएं दी थीं, उनके मुताबिक मदाइन की फौज और ईसाइयों का लश्कर एक ही खैमागाह में नहीं थे। खैमागाह में सिर्फ मदाइन की फौज थी और ईसाई अपनी बस्तियों में थे। ये बनी तगलब की बस्तियां थीं। जासूसों ने उन बस्तियों के महल वकूअ बता दिए थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी फौज के एक हिस्से की कमान सालार काका को और दूसरे हिस्से की कमान सालार अबू लैला को दी थी। तीसरा हिस्सा अपनी कमान में रखा था। काका और अबू लैला को ईसाई कबीले बनी तगलब की बस्तियों पर शबखून मारना था, जो बस्तियों की निस्बत जरा करीब थी। तीनों हिस्सों को बैक वक्त हमला करना था। मौरखीन ने लिखा है कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया था कि किसी औरत और किसी बच्चे पर हाथ न उठाया जाए। कुफार को मुजीह के मकाम पर मुसलमानों के एक शबखून का बड़ा ही तल्ख तजर्बा हो चुका था।
उन्होंने सन्ना की खैमागाह के इर्द गिर्द पहरे का बड़ा सख्त इंतजाम कर रखा था। गश्ती पहरे का इंतजाम भी था। 4-4 घुड़सवार खैमागाह से दूर दूर तक गश्त करते थे। मुसलमान जासूसों ने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को इस इंतजाम की भी इत्तला दे दी थी। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस इंतजाम को बेकार करने का बंदोबस्त कर दिया था। सन्ना से कुछ दूर खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु की फौज पहले से तय किए हुए मंसूबे के मुताबिक रुक गई। उसे आगे की इत्तला के मुताबिक आगे बढ़ना था। चंद एक शुतर सवार जो मुसन्ना बिन हारिसा के आजमाए हुए छापामार थे आगे चले गए थे। वो ऊंटों के काफिले की सूरत में जा रहे थे। वो सन्ना की खैमागाह से अभी दूर ही थे कि उन्हें किसी ने ललकारा। वो रुक गए और अपनी तरफ आते हुए घोड़ों के टाप सुनने लगे। 4 घोड़े उनके पास आ रुके। एक घुड़सवार ने उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग? एक शुतर सवार ने डरे हुए लहजे में कहा, मुसाफिर हैं, और किसी बस्ती का नाम लेकर कहा कि वहाँ जा रहे हैं। शुतर सवार 8-10 थे। उनमें से एक तो घुड़सवारों को बता रहा था कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। दूसरे शुतर सवार ऊंटों को आहिस्ता आहिस्ता हरकत देते रहे, हत्ता के 4 घुड़सवार उनके नरगे में आ गए। एक घुड़सवार ने बड़े रोब से हुक्म दिया, उतरो ऊंटों से। 4 शुतर सवार ऊंटों से इस तरह उतरे कि ऊपर से एक एक घुड़सवार पर झपटे। उनके हाथों में खंजर थे जो घुड़सवारों के जिस्मों में उतर गए। उन्हें घोड़ों से गिराकर खत्म कर दिया गया। 4 मुजाहिदीन चारों घोड़ों पर सवार हो गए और दुश्मन की खैमागाह तक चले गए। एक संतरी उन्हें अपनी सवार गश्त समझकर उनके करीब आया। अंधेरे में 2 घुड़सवार उतरे और उस संतरी को हमेशा की नींद सुला दिया। उन्होंने कई और संतरियों को खामोशी से खत्म किया और वापस आ गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। वो जो ऊंटों पर गए थे 4 घोड़े भी साथ ले आए थे। उन्होंने खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को बताया कि रास्ता साफ है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने सरगोशियों में कासिदों को दूसरे सालारों की तरफ इस पैगाम के साथ दौड़ा दिया कि हल्ला बोल दो। उस वक्त तक घोड़ों के मुंह बंधे हुए थे, वो हिनहिना नहीं सकते थे। सवारों ने सालारों के कहने पर घोड़ों के मुंह खोल दिए। उनके हदफ दूर नहीं थे। कुछ दूर तक घोड़े प्यादों की रफ्तार के साथ आहिस्ता चले गए। फिर रफ्तार तेज कर दी गई और प्यादों को दौड़ना पड़ा। बस्तियों के करीब जाकर मशलें जला ली गईं। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को इतनी तेजी से आगे न बढ़ाया। उन्होंने शबखून की तरतीब में फैला दिया था। ये ऐसी पेशकदमी थी जिसमें कोई नारा न लगाया गया, न किसी को ललकारा गया। नवंबर 633 ईस्वी के दूसरे और रमजानुल मुबारक की 12 हिजरी के पहले हफ्ते की वो रात बहुत सर्द थी। बनी तगलब की बस्तियों में और फारिस की फौज की खैमागाह में जो वसीओ वरीस थी, लोग गर्म बिस्तरों में दुबके हुए थे। कोई नहीं बता सकता था कि कौन क्या ख्वाब देख रहा था। ये कहा जा सकता है कि हर एक के जहन पर मुसलमानों की फौज और उसकी दहशत सवार थी। लोग उसी फौज की बातें करते सोए थे। अचानक बस्तियों के घरों के दरवाजे टूटने लगे। गलियों में घोड़े दौड़ने लगे। मुजाहिदीन ने मकानों से चारपाइयां और लकड़ियां बाहर लाकर जगह जगह उनके ढेर लगाए और आग लगा दी ताकि बस्तियां रोशन हो जाएं। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार ने सर्द रात को हिलाकर रख दिया। औरतें अपने बच्चों के साथ बाहर आकर एक तरफ खड़ी हो जाएं। ये मुजाहिदीन की ललकार थी जो बार बार सुनाई देती थी। बनी तगलब के आदमी कट रहे थे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म था कि बूढ़ों, औरतों और बच्चों के सिवा किसी आदमी को जिंदा न रहने दिया जाए। इन लोगों को वो लश्कर बचा सकता था जो थोड़ी ही दूर खैमागाह में पड़ा था। बस्तियों का वावेला लश्कर तक पहुंचा, लेकिन वहाँ नींद और सर्दी ने सबको बेहोश सा कर रखा था। लश्कर को जगाने के लिए कोई संतरी जिंदा न था। आखिर खैमागाह में कुछ लोग बेदार हो गए। उन्हें इर्द गिर्द की बस्तियों में रोशनी नजर आई जैसे आग लगी हुई हो। शोर भी सुनाई दिया। वो अभी समझने भी न पाए थे कि ये क्या हो रहा है। वैसे ही हड़बोंग खैमागाह के एक गोशे में बपा हुई जो आंधी की मानिंद बढ़ती और फैलती गई। कुछ खैमों को आग लग गई। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तों ने आतिश परस्तों की फौज को काटना शुरू कर दिया था। ये फौज अब कटने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकती थी। दुश्मन के बहुत से सिपाही खैमों में दुबक गए थे। इन खैमों की रस्सियां मुसलमानों ने काट दी। खैमे सिपाहियों के लिए जाल और फंदे बन गए। मुसलमानों ने उन्हें बर्छियों से खत्म कर दिया। मुसलमानों के नारे और उनकी ललकार बड़ी दहशतनाक थी। मौरखों ने लिखा है कि मुसलमानों को इतने वसी पैमाने पर शबखून मारने का दूसरा तजर्बा हुआ था। अब उन्होंने ये इंतजाम कर दिया था कि किसी को भागने न दिया जाए। बस्तियों और खैमागाह के इर्द गिर्द मुसन्ना बिन हारिसा के घुड़सवार घूम फिर रहे थे। कोई आदमी भागकर जाता नजर आता तो उसके पीछे घोड़ा दौड़ा दिया जाता और बर्छियां तलवार से उसे खत्म कर दिया जाता। अगर कोई औरत भागती नजर आती तो उसे पकड़कर उस जगह पहुंचा देते जहां औरतों और बच्चों को इकट्ठा किया जा रहा था।
जूं जूं रात गुजरती जा रही थी, बनी तगलब की बस्तियों में और मदाइन की फौज की खैमागाह में शोर गोगा और वावेला कम होता जा रहा था और जख्मियों की कर्बनाक आवाजें बुलंद होती जा रही थी। मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए जो निकले थे, उनकी लाशें ठंडी हो रही थी और उनके जख्मी प्यासे मर रहे थे और उनकी बेटियां मुसलमानों के कब्जे में थी। सुबह तुलू हुई तो उजाले ने बड़ा ही भयानक और इबरतनाक मंजर दिखाया। लाशों के सिवा कुछ नजर नहीं आता था। लाशें खून में नहाई हुई थी। ये फतह ऐसी थी जैसे किसरा के बाजू काट दिए गए हों। खैमगाह और बस्तियां मौत की बस्तियां बन गई थीं। जिन घोड़ों पर उन कुफ्फार को नाज था, वो घोड़े वहीं बंधे हुए थे जहां गुज़श्ता शाम उन्हें बांधा गया था। औरतें अलग बैठी रो रही थीं, बच्चे बिलबिला रहे थे। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि सबसे पहले औरतों और बच्चों को खाना दिया जाए। इस्लामिक शोर स्टेटस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट